Assalamu alaikum and welcome. In today's episode, this setback that shaped success, we explore a reality, a myth that many aspiring chartered accountants face. That having a setback in your journey is the end of your success. What happens when you actually plan something and it doesn't go as expected? Do you allow the setback to define you, or do you use it as a fuel and come back stronger? Joining us today is Amish Tamimi, who will share with us today his honest story of setbacks, resilience, and final comeback that ultimately shaped his success, leading him to qualify as a chartered accountant within the articles. Having a setback does not mean that it is the end of your career, or failing in an exam does not mean that you cannot achieve what you want to achieve. So here I am, Amish Tamimi, working as a finance transformation manager in one of the leading UK-based firm, and also serving as a visiting faculty member in one of the most prestigious CA institutes of Pakistan. So Amish, before we talk about the turning points that take us back to the point where you first aimed or thought of becoming a chartered accountant, what was that actual point when you thought about this? So no, it is really an interesting story. I would love to share that. So you won't believe, but I still remember that I was in the prep class. Prep class में कितने बच्चे की उम्र होती है, तो the teacher was asking everyone that आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में. तो obviously the answer would be डॉक्टर, इंजीनियर, और कोई बहुत ज़्यादा किसी ने यूनिक बोलना था तो मे बी अ पायलट. So everyone was giving his intro. He was standing up and giving, yes ma'am, this is my name, I want to become this and that. And my turn came. I still remember that I stood up and I said, Miss, my name is Amish Tamimi and I want to become a CA. So there was a pin drop silence. So everyone was like, what is this? Even the teacher asked that, Amish, CA? आपको पता है CA क्या है? And literally I didn't know कि CA क्या है. So I just said, Miss, what I only know is कि CA chartered accountancy होती है और मुझे बस CA बनना है. That's too young to know कि आपको prep class में पता था you want to be a chartered accountant. Yeah, so exactly. This is all because क्योंकि मैंने अपने फादर के नेम से अगर पूरी लाइफ में कुछ सुना है तो सिर्फ एक ही नाम सुना है कि CA. So शायद मेरे लिए बचपन से ही अगर कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता भी था तो वो CA ही था, और मेरा नहीं ख्याल कि और कोई प्रोफेशन था भी या मुझे करना भी था. तो फ्रॉम द बैक एंड स्टार्टिंग से ही हमेशा से अगर मैंने बनना था तो मैं CA के लिए ही बना था. That's like real spirit, because हम काफ़ी late define करते हैं कि अच्छा हमने क्या करना है. Even close to when we are in the grade 9 or 10th we decide, but आपने तो बहुत जल्दी decide कर लिया. So let's dive into the moment that many students fear. Can you take us back to the exact moment when at 10 o'clock you opened your mobile, saw the message that it wasn't what you were expected, or you got disappointed, and what was your reaction like? I really want to know. I can't forget that obviously. तो अगर हम उसको स्टार्ट करें तो बेसिकली जिस तरह ही जैसे ही कैफ होता है तो एवरी स्टूडेंट is trying to get inducted into a beautiful firm, or you can say the prestigious firms. So yeah, alhamdulillah I got inducted into one of the big fours. So maybe सबकी तरह था कि ओके अब तो इंडक्शन हो गई तो अब और क्या चाहिए, बस ठीक है इंडक्शन होनी थी, अब तो बस हो जाएगा CA, चलता जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है. तो या हम आए, हमने आर्टिकल स्टार्ट किए, फुली मोटिवेटेड कि मैं कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है. ऑब्वियसली बैकग्राउंड ऐसा था कि कभी लाइफ में फेलियर नहीं देखा. आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द टॉप. अगर बचपन से अब तक करें तो हमेशा पोजीशंस में ही फाइट की है, फर्स्ट 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा उसी में चला है. सो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक ओके, टाइम भी बहुत है, पहले अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो 3 पेपर देंगे आराम से, जिनमें से एक अकाउंटिंग है जो कभी आज तक ज़िंदगी में फेल नहीं हुई और बचपन से हम करते आ रहे हैं, और ऑडिट है जो मुझे वैसे ही आता है, फिर पीछे SPM रह जाता है, उसमें क्या ही है, वो तो चलो हो जाएगा ऐसे ही. तो ठीक है, फुली कॉन्फिडेंट उसी तरह लेके चल रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आर्टिकल्स कर रहे हैं, आराम से आके पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं, हम तो कर ही सकते हैं. बट ऐसे ही हुआ, जिस दिन रिजल्ट था पेपर भी दिए, फुली कॉन्फिडेंट, हाँ हो जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है. सुबह 10 बजे नोटिफिकेशन आया, मोबाइल खोला और जब उसमें देखा तो उसमें नंबर आए हुए थे. सो आई वॉज लाइक नहीं, ये तो गलत हो गया, आई कैप की तरफ से गलती हो चुकी है. मुझे अभी भी याद है, ये थोड़ा सा एक सिली है, बट मैंने अपने सीनियर को मैसेज किया एंड आई आस्क्ड के क्या गलती हो सकती है आई कैप से, ऐसा हो सकता है कि 10-15 मिनट बाद मैसेज आए तो वो चेंज हो जाए, और मैसेज के बाद आपको पता है कि मैसेज के थोड़ी देर बाद PDF आता है, तो आई वेटेड कि यार चलो PDF आएगा उसमें शायद चेंज हो जाए, ये मैसेज गलत हो सकता है. सो आई वॉज इन डिसबिलीव, यू कैन से कि उस टाइम पे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है. बट
yeah, somehow I landed there. आपने कैसे उस फेलियर को मैनेज किया? बिकॉज एक बच्चा जो कि हमेशा से पोजीशंस लेता है उसके लिए तो फेलियर अगर एकदम सामने आ जाए तो वो तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल डिफिकल्ट था। सिर्फ यही नहीं कि वो बच्चा जो हमेशा टॉप पे रहा है, बट वो बच्चा जिसने लाइफ जब से शुरू की है या होश संभालने से भी पहले से वो यही बनना चाहता था और उसने यही बनना था। मुझे अभी भी याद है कि आई वॉज इन 9th 10th, मतलब आप कह सकते हैं कि सीए आने से पहले मैं जिस स्कूल में जिस क्लास में जहाँ गया हूँ मैंने हर जगह एडवर्टाइजमेंट की है कि मैंने सीए करना है, मैंने सीए बनना है। तो जिनको नहीं पता था उनको एजुकेट किया सीए क्या होता है और मैंने बनना है। मुझे अभी भी याद है मेरे मैट्रिक एंड एफएससी के टीचर्स जो थे, दे वर लाइक आमिश जस्ट थिंक अगेन, आप सीए करने जा रहे हो, अपने रास्ते बंद नहीं करो। बिकॉज आई डिड आई कम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, सो ऑल इतने अच्छे नंबर लेकर भी मैट्रिक में ऑलमोस्ट 97%, बट स्टिल आई वेंट फॉर आईकॉम। सो एवरीवन वाज लाइक ना जाओ, अपने रास्ते क्यों बंद कर रहे हो, एफएससी है कर लो, उसके बाद एक्सप्लोर कर लेना। तो मुझे वो ऑनेस्ट ओपिनियंस याद हैं, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ, मैंने करना है तो यही करना है और वरना मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। सो शायद वो एक चीज़ थी जिसने मुझे हेल्प किया उसमें कॉप अप करने के लिए, वरना आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है या डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप उसमें से निकल पाएंगे। आई हैव द सेम केस और मैं बिल्कुल सही कहूँगी, इफ़ यू हैव द मोटिवेशन एंड यू नो कि यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू डेस्परेटली वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फिर आप कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। सो इसका मतलब है कि यू नेवर फेल्ट गिविंग अप एवर? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सबके अंदर इमोशंस हैं, वी आर ह्यूमन। सो ये नहीं कह सकते कि कोई अगर इंसान इतना मोटिवेटेड है तब भी उसके अंदर उसके पास सेटबैक नहीं आएगा या वो डीमोटिवेटेड नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि शायद वो ज़्यादा डीमोटिवेट होता है क्योंकि आपने हमेशा से एक सोचा होता है, एक ख्वाब जो आपने देखा होता है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, फ्री टाइम में आप क्या करते हो, अपने ड्रीम्स देख रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो अच्छा मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ऐसे क्वालिफाई करना है। तो जैसे ही आपके पास एक सेटबैक आता है यू आर लाइक एकदम से ये क्या हुआ, तो फिर आप सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हो। आई थिंक सो कि क्या ये मेरे लिए ही है, क्या वाकई है, क्या मैं किसी ऐसी चीज़ के पीछे तो नहीं पड़ा होता जो अचीवेबल ही नहीं है। सो था, बहुत डिमोटिवेटिंग था। मुझे अभी भी याद है कि देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई थॉट कि शायद जो मैं सोचता आया हूँ वो नहीं है, नहीं हो सकता, मुझे छोड़ देना चाहिए ये फील्ड। फनी स्टोरी कि आई ऑल्सो थॉट दैट ओके लेट्स जस्ट डू बीकॉम, बिकॉज एट दैट टाइम आप उस फेज में होते हो तो आपके इर्द गिर्द बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी होती है। और आई थिंक सो कि अगर आपको राइट पुश या राइट पाथ ना मिले तो मेरा नहीं ख्याल आप उसमें से निकल पाते हो, तो या डिमोटिवेशन होती है। तो ऐसे पॉइंट में हमें क्या करना चाहिए दैट कीप्स अस गोइंग? आई थिंक सो ये बहुत मैटर करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं और या किन लोगों के साथ हैं उस टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, अगर मैं अपनी बात करूं तो एट दैट टाइम माई फादर वॉज द पर्सन जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मेरा ख्याल है कि अगर जो भी हूँ तो उनकी ही वजह से हूँ। ऑब्वियसली पेरेंट्स, बट फादर वॉज मतलब मेरे से ज़्यादा वो डिसहार्टेड थे। ही इज़ द रोल मॉडल फॉर यू बेसिकली, सो यू कैन रिलेट। उनकी ही मेरा ख्याल है वो डिमोटिवेशन देख के मुझे ज़्यादा हुआ कि वो तो हमेशा से मोटिवेटेड थे, तो ये एकदम से क्या हुआ। फनी स्टोरी के कैन से फनी बट इमोशनल एज वेल, मेरा जब भी रिजल्ट आया फ्रॉम AFC से लेके अब तक, रिजल्ट वाली रात मेरे फादर सोते नहीं थे। सो ही वाज लाइक प्रेइंग, वो नफिल पढ़ रहे हैं, वो रात को उठ रहे हैं। शायद मुझे नींद आ जाती थी बट उनको नींद नहीं आती थी उसको कि भाई इस वक्त ये रिजल्ट आने वाला है। तो उनका बहुत बड़ा उस चीज़ में हाथ था, और वो एट दैट टाइम जब मैं छोड़ चुका था वो मुझे देख के और ज़्यादा वो हो गए थे कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्यों नहीं कर सकता। और मुझे अभी भी याद है कि जब वो मेरे साथ बैठे और उन्होंने बात की तो ही वाज लाइक कि आमिश एक बात है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैंने हमेशा से सोचा था कि उनमें से आमिश सबसे ज़्यादा लाइक है। आमिश बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करने वाला है, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका वो सोल्यूशन ना निकाल पाए, और आमिश से नहीं हो रहा। मतलब वो उनके अल्फाज थे कि शायद फिर नहीं हो सकता होता सीए। तो वो एक लेवल था कि जो मुझे फील हुआ कि नहीं, ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और ये तो नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मैंने अपने फादर को देना है और उनके लिए करना है। तो आई थिंक सो वो एक पॉइंट था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मज़ीद मोटिवेट किया और मुझे पुश किया कि नहीं, यू कैन डू इट। अगर मेरे फादर कह रहे हैं, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं, कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं लिटरली कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकता। सो आमिश, आफ्टर योर फादर बिलीव इन यू, तो उसके बाद आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, आपने कैसे अपने आप को रीडिफाइन किया, क्या शेड्यूल बनाया, कैसे सब कुछ हैंडल किया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट वुडंट बी द फेलियर अटेम्प्ट? सो
इट वॉज फनी बट मैं फादर के साथ बैठा एंड आई आस्क्ड दैट क्या करूँ, मतलब लिटरली आई आस्क्ड हिम बिकॉज हमेशा से उन्होंने ही पढ़ाया है, तो दे नो बेटर कि मैं किस तरह पढ़ता हूँ. हर स्टूडेंट का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, टीचिंग कह रहा हूँ, हर स्टूडेंट का पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है. सो हाउ दे परसीव, किस तरह वो उस चीज़ को लेते हैं, चैलेंजेस को लेते हैं. सो दे नो बेटर कि मैं किस तरह पढ़ सकता हूँ और क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. सो दे सेड वन थिंग कि आमिर तुम हमेशा टॉप करते आए हो, हमेशा हमने पोजीशंस ली हैं, तो अपने रूट्स पे जाओ. तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक विराट कोहली और बाबर आजम का जब वो पैच चल रहा होता है, तो वो हमेशा आप सुनेंगे न्यूज़ में एक ही बात हो रही होती है कि इनको अपने रूट्स पे जाना चाहिए, पीछे डोमेस्टिक में जाना चाहिए वहीं से. तो वो सच है कि आपका जब भी कोई ऐसा फेस चल रहा हो, अपने आप रूट्स देखो कि आपकी रूट्स क्या हैं, आप हमेशा से कैसे पढ़ते थे. तो मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था. मैं हमेशा से एकेडमीज जाता था, तो मैं शायद मुझे फ्री हैंड छोड़ देंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा. मुझे जब तक प्रेशर ना पड़े, जब तक एक पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में ना लेके चला जाए, तो मैं नहीं कर सकता. तो वो बैठे, उन्होंने मुझे यही कहा कि जिस तरह हमेशा से पढ़ते थे, रोज़ का रोज़ अपना एक शेड्यूल बनाकर और टेस्ट सेशंस देकर अपने आप को उसी फील्ड में लाओ, अपने आप को उसी लाइफ के अंदर लेकर आओ, तब आप कर सकते हो. एंड फन फैक्ट कि जहाँ मैंने सोचा था कि मैं 3 दूंगा, फिर मैं 2 दूंगा, फिर 2 दूंगा, 2 दूंगा, इस तरह करके मैं स्लोली चलूंगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं शायद दे सकता, क्योंकि एक सेटबैक के बाद तो वैसे ही अपने आप को बंदा सोचता है कि नहीं, मेरा कैलिबर शायद इतना नहीं है, मैं नहीं कर सकता. तो जब मैं उस पर आया तो मैंने एक चैलेंज दिया कि नहीं, आई कैन डू इट. और जो एक ख्वाब मुझे लगता था कि विद एन आर्टिकल शायद नहीं हो पाएगा, वो मैंने कहा नहीं, अब अगर करना है तो विद एन आर्टिकल्स ही करना है और क्वालिफाई भी करना है. मुझे याद है कि आई मेड माई टाइम टेबल, जिस तरह मेरा पढ़ने का स्टाइल है मैं उसके ऊपर लेकर आया, उसको फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, और पहले में 4, फिर अगले में 2, फिर 2 करते हुए क्वालिफाई कर ली. वंडरफुल. ये चीज़ बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होती व्हेन वी आर स्टडिंग आवर पेपर्स. अपनी मर्जी से पेपर चूज़ करते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ना होता है. तो होते हैं कुछ बच्चे जिनको सुपरविजन चाहिए होती है, लाइक यू एंड मी, और कुछ ऐसे टॉपर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि हम तो कोई पेपर फेल नहीं कर सकते, और अगर फेल कर लें तो फिर वो इतना डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि बीइंग अ टॉपर वी आर लाइक नॉट क्वालिफाइंग, वी आर नॉट बीइंग एबल टू पास दिस एग्ज़ाम. ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहोगे, उन्हें क्या मोटिवेशन दोगे, क्या बताओगे कि नहीं, प्लीज़ डोंट क्विट? ये कॉमन है, पता है. आप क्या सोचते हो कि आप कहते हो कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी पासिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं होगा, शायद मुझे भी सीए से पहले मुझे नहीं पता था मेरी पूरी लाइफ में, मैं अपने स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ, पासिंग नंबर कितने थे मुझे कभी नहीं पता, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है. हम हमेशा टॉप लेवल पे सोच रहे होते हैं कि अच्छा 97, 96, 95, 98 व्हाटएवर, हम उसके बारे में सोचते. तो वो जब आप इस फील्ड में आते हैं, एकदम से आप उसको फेस करते हैं, तो यू डिसबिलीफ में होते हैं आपके नहीं, और फिर शायद आप सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं. तो उसके लिए आई थिंक सो सबसे बेहतरीन यही है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें कि फेलियर इज़ नथिंग. मीन्स अगर आपका एक कोई सेटबैक आ गया तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, एंड एट द सेम टाइम नॉट द एंड ऑफ योर सीए कैरियर. आई एम हेयर, मुझे भी लगा था कि शायद नहीं हो सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई सक्सीड. I got the best job which I aimed, I thought of. Similarly, I also got the chance to teach as well. Now I'm teaching the CA students. So, yeah, you can say कि यही है सब कुछ. सेटबैक इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. फेल होना कभी कभार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको उस लेवल का सक्सेस पे जाने के लिए. अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मुझे शायद लगता है कि शायद ये बेहतर ही था. अगर वो सेटबैक ना आता तो जितने आगे मुश्किल पेपर थे, द लॉ, MSA 1, MSA 2, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट पास इन अ सिंगल अटैम्प्ट. सो आई ऑब्वियसली जब शुरू में होते तो हम भी यही सोचते थे कि शायद नहीं होगा सिंगल अटैम्प्ट में, बट शायद उस सेटबैक की वजह से जो मैंने रूटीन बना ली और जो मुझे आदत आ गई कि अच्छा नहीं, मैंने ऐसे ही पढ़ना है, तो जब वो मैंने 4 किए तो उसके बाद आई थिंक सो लॉ, MSA 2, MSA 1 विद इन अ फ्लो निकल गया. तो वो उसके बाद एक भी अटैम्प्ट में मैं नहीं रुका और जिसे कहते हैं चलते ही चला गया. तो या आई थिंक सो कि वो बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स आपका एक ट्रेजेडी या एक आपका फेलियर या एक आपका सेटबैक जो है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है. सो आमिश, आपको सीए जर्नी ने कैसे हेल्प किया? लाइक यू से यू आर वर्किंग, यू ऑल्सो टीच, सो हाउ दिस सीए जर्नी हेल्प यू इन गेटिंग योर करंट जॉब? आई थिंक सो जो ये ICAP का पूरा सिस्टम है सीए करवाने का, ये बहुत अच्छा है. आई वुड से इट्स मार्वलस. मतलब किसी भी फील्ड में शायद ऐसा सिस्टम नहीं है, और आई थिंक सो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप कैफ करते हैं, फुल ऑन स्टडी 9 to 5 आप पूरा दिन स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर भी हो रहे हैं, साथ साथ आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आपने पढ़ना है और वो पेपर देने हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो आई थिंक सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये एक तरह से ना शेप करता है.
दोनों चीज़ें आपको मैनेज करवाता है। बिकॉज जब हम क्वालिफाई होकर निकलते हैं, देखा जाए तो हमने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है ना, उसी तरह जैसे कोई और कर रहा है, वो 4 साल में कर रहा है, हमने 5.5 या 6 साल में किए हैं, डॉक्टर ने किया। बट हमारे पास 3.5 ईयर्स का एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आई कैन से इज प्राइसलेस, शेप करता है, इस प्रोफेशन के अंदर लेकर आता है। और जब आई गिव द इंटरव्यू, आई स्टिल रिमेंबर कि उसने बहुत मुझे हेल्प किया कि मेरे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरे पास हर फील्ड का एक्सपीरियंस है। सो आई एम नॉट लाइक यू कैन से फ्रेशर। सो ना मुझे फ्रेशर वाली जॉब मिली, ना मुझे फ्रेशर वाली, और आई थिंक सो इस IKEAP के सिस्टम की वजह से जब भी आप सी करके निकलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी को भी फ्रेशर वाली जॉब मिलती है। जो किसी और इंस्टीट्यूट या किसी और जो आप HEC के डिग्रीज करके निकलते हैं तो ऑब्वियसली यू आर अ फ्रेशर एंड आप कहते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मेरा पे स्केल भी उस हिसाब से होना चाहिए, मेरी पोजीशन भी। बट हेड्स ऑफ टू IKEAP जो ये सिस्टम सारा बना हुआ है। सो आई वुड से दैट सीरियसली मतलब इस IKEAP और इस CNA मुझे बहुत इम्प्रूव किया, और आज जहाँ मैं हूँ टोटली बिकॉज ऑफ दिस। थैंक यू सो मच आमिश फॉर योर वंडरफुल टाइम, और हमें ये सब गाइड करने के लिए कि एक्चुअली में फेलियर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में टू गो एंड अचीव अ पर्टिकुलर सक्सेस। सो क्लोजिंग आवर एपिसोड 3 with Amish Tamimi. We are looking forward for more episodes. Stay connected and stay with us. Thank you.